Hello beta, good evening everyone. Beta, today we will take questions based on demand and supply of money. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ट्राई टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द डिमांड ऑफ मनी is a function of which of the following factors? Demand of money किस किस चीज का फंक्शन है? पॉइंट नंबर 1 बेटा, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइस लेवल एंड वेज रेट, एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन. तो डिमांड ऑफ मनी इनमें से किस चीज का फंक्शन है? विच फैक्टर इज डिमांड ऑफ मनी अ फंक्शन ऑफ? तो बेटा हम डिमांड ऑफ मनी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एम बाई पी डी इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई. माने वो कौन सी दो चीजों का फैक्टर हुआ? व्हाट आर द टू फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन? First of all, it is a function of income. Second, it is a function of interest rate. It's a function of income and a function of interest rate. So what will be the answer to this question, beta? Answer will be A. It will be A. So देखो ध्यान से, it is a function of income and interest rate. पढ़ो. The demand of money is influenced primarily by the level of income, which affects transaction demand. तो जो income होता है उससे कौन सा demand affect हो रहा है? Transaction demand for money. And interest rate, which affects the speculative demand for money. तो बेटा income affects the transaction demand for money. Transaction demand means वो demand जो daily transactions के लिए चाहिए होती है. The demand which is required to do day-to-day transactions. And beta, interest rate affects speculative demand for money. It affects speculative demand for money. और speculative demand for money कौन सा demand for money है? That demand for money which helps to go ahead and earn returns on money. जिससे money से हम return earn कर सकते हैं. Higher income increases demand for money, while higher interest rate reduces the demand due to opportunity cost of holding money. तो जब इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होती है, बट जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज हो जाती है. When income increases, demand for money increases. When interest rate increases, demand for money decreases. Why? Because holding money becomes expensive. पैसे को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है, महंगा है. Holding money is expensive. Holding money is expensive. समझे बात को? Is this clear बेटा? ठीक है बच्चे. Come to the next question. According to quantity theory of money, which equation represents relationship between money supply, velocity of money, price level and output level? इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है? बेटा रीड द ऑप्शंस. mv is equal to pq, mv is equal to py, m is equal to py या p is equal to mv by y. Which equation represents the quantity theory of money? But the correct answer to this question will be answer number. What is the quantity theory of money? mv is equal to pq. mv is equal to pq. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा एक हमें एक्सप्लेन करना है मेरे को. एक्चुअली बेटा ये डिपेंड करता है कि व्हाट बुक यू आर स्टडिंग फ्रॉम. मोस्ट ऑफ द बुक्स विल राइट mv इज इक्वल टू py. तो ये वाला आंसर भी करेक्ट है. ठीक है, इस आंसर में कुछ गलत नहीं है. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. एंड इफ mv इज इक्वल टू py और मैं y को दूसरा साइड पे ले जाऊं तो mv बाय y इक्वल टू p, ये भी करेक्ट हो सकता है ना. और अगर हम Q is basically considering the output level, है ना, तो mv is equal to pq भी करेक्ट है. राइट. सो एक्चुअली ऑप्शन A, B एंड D तीनों ही
करेक्ट है डिपेंडिंग ऑन विच बुक यू आर स्टडिंग फ्रॉम, डिपेंडिंग ऑन विच बुक यू आर स्टडिंग फ्रॉम। तो बेटा MV is equal to PY, this is the most common notation, तो हम इसको ज्यादा करेक्ट मानेंगे। we will consider MV is equal to PY as most correct option, ठीक है। अच्छा, इसी में प्लीज अंडरस्टैंड दैट हियर M represents the money supply, V represents the velocity of money, V को हम velocity of money बोलते हैं, P is the price level and Y is the level of the output, goods and services। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। If the central bank increases money supply, which of the following is likely to happen in the short run? अगर सेंट्रल बैंक अपना मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है तो इसका क्या होगा शॉर्ट रन में? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन या इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? Which of the following option is correct? The correct answer depends on the graph. बेटा ये है supply of money. बेटा this is the demand for money. Currently this is the interest rate. Now central bank has increased money supply. So the supply curve will shift rightwards. When the supply curve will shift rightwards, what will happen to the interest rate, bache? Interest rate in the economy will decrease. Interest rate in the economy will decrease. So there will be a decrease in interest rate whenever there will be increase in the supply of money. ठीक है? Why? Reason पढ़ो. This is because more money is available for lending, reducing the cost of borrowing. जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो इकोनॉमी में जो पैसा है वो ज्यादा है, तो सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से लोन्स इजीली मिल सकते हैं, और जब लोन इजीली मिल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर डी। ओके बेटा, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। The Keynesian theory of money demand breaks the demand for money into which components? Keynes के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? बेटा फर्स्ट, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी स्पेक्यूलेटिव, सेविंग इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रेट, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई साइड मोटिव। इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है? व्हाट are the components for transaction demand for money? For the Keynesian theory demand for money. So what is the right answer beta to this question? Answer number A. Answer number A. Correct. So Keynes के according there are 3 reasons why people can demand money. Beta reason number 1, transaction demand for money, which is to do day-to-day transaction, everyday purchase, खरीद बेच करने के लिए जो पैसा चाहिए, transaction demand for money. बेटा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. प्रिकॉशनरी इज फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड्स, माने ऐसा कुछ हो गया जो जिसके लिए एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई, उसके लिए लोग कुछ पैसा बचा के रखेंगे. बेटा ऑप्शन नंबर 3 इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, माने स्पेक्यूलेटिव डिमांड मीन्स टू अर्न रिटर्न फ्रॉम मनी. हाँ, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से जब आप पैसा कमाते हो, when you take advantage of change in interest rate and asset prices, when you earn return because of increasing interest rate, then that is speculative demand for money. So according to Keynes, बेटा 3 डिमांड फॉर मनी हो गए, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव. ठीक है बेटा, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following factor will most likely cause supply of money to increase?
किस रीजन से मनी का सप्लाई बढ़ सकता है, किस फैक्टर की वजह से? बेटा ऑप्शन नंबर ए देखो, इंक्रीज इन सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। किस रीजन की वजह से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो सकती है? व्हाट कैन कॉज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी? तो पहले देखो बेटा, अगर रिजर्व्स ज्यादा रखने होंगे तो मार्केट में तो मनी गिर जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी शुड फॉल इफ बैंक्स हैव टू कीप मोर रिजर्व। माने ये तो नहीं हो सकता बेटा। इफ गवर्नमेंट विल बोरो लेस, so there will be more money available for borrowing by other people। अगर गवर्नमेंट कम बोरो करेगी तो बाकी लोग ज्यादा बोरो कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 देखो, डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट। अगर डिस्काउंट रेट कम हो जाएगा, अगर डिस्काउंट रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग रेट भी कम हो जाएगा, और लेंडिंग रेट कम हो जाएगा तो मोर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। एंड बेटा ऑप्शन नंबर डी देखो, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर आप रिजर्व्स बढ़ाओगे तो उसका मनी सप्लाई से हम रिलेशन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ बेटा यू आर लेफ्ट अप विद ऑप्शन बी एंड सी। देयर कैन बी अ कंफ्यूजन इन ऑप्शन बी एंड सी। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट अवेलेबल होता है वो तो बढ़ता है, बट ओवरऑल मनी सप्लाई अनचेंज्ड रहता है। दैट मीन्स देयर इज लेस क्राउडिंग आउट विथ सेम मनी। माने what it means is that I have a money supply of 100। earlier government was taking 40 and investment के पास 60 रुपीज जा रहा था लोन में। ठीक है, now what has happened is that now government is taking 20, so investment can take 80 as loan। for investment 80 can go as loan, but money supply in the background तो unchanged ही है ना। this is not changing the money supply, this is changing investment। ये मैंने आपको इसलिए ट्रिक के लिए I kept this option। ठीक है, but now if you look at option number C, so when discount rate changes, ठीक है, इट मीन्स दैट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो कर सकता है वो सस्ता हो गया, तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आपको लोन देगा वो भी तो सस्ता हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज सेंट्रल बैंक, बेटा दिस इज कमर्शियल बैंक। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक, दैट इंटरेस्ट रेट हैज डिक्रीज्ड। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो इंटरेस्ट रेट गिर गया है, तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आप लोगों को लोन देगा, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक विल गिव लोन टू यू पीपल, बेटा वो इंटरेस्ट रेट भी तो गिर जाएगा, है ना। और अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई ज्यादा होगा लोन देने के लिए। सो द आंसर शुड बी डिक्रीज इन द डिस्काउंट रेट, डिक्रीज इन द डिस्काउंट रेट। ठीक है, okay beta, thank you very much। this was today's session on the demand and supply of money। I hope you will find this session useful। beta please इन videos को आप अच्छे से देख लो, these questions are very important from the point of view of your exam। thank you beta।